السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہر میں بارش اور یالہ باری کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ موسم کی مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو گزشتہ روز ہونے والی سالہ باری کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور جو درجہ حرارت اوپر کی جانب جا رہا تھا اب واپس نیچے کی جانب آ رہا ہے۔ شہر کا ابھی کا درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں بھی سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہر کا مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ ابھی بھی جو ہے وہ سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ آپ کو بتانا چلوں کہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 70% کے قریب بتایا جا رہا ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ ابھی بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ ہی ہے۔ جو شہری گزشتہ دنوں میں ہونے والی گرمی کے بعد اپنے جو گرم ملبوسات ہیں پیک کر چکے تھے، ان کے اب جیکٹیں واپس نکالنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہی جو درجہ حرارت ہے وہ 8-9 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ جی پنجاب حکومت کا عوام کو ریلیف دینے کا عزم۔ رمضان نگہباں پیکیج کا آغاز کل سے ہوگا اور ضلع انتظامیہ نے راشن کی تقسیم کے لیے لسٹیں مرتب کر لی ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر عمل درآمد۔ رمضان نگہبان پیکیج کے تحت گھروں تک راشن پہنچانے کی تیاریاں مکمل۔ کمشنر لاہور ڈویژن کی زیر صدارت ٹاؤن ہال میں اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر سمیت مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ لاہور میں گھروں تک راشن کی فراہمی کا منصوبہ 4 مارچ سے شروع ہوگا۔ کمشنر محمد علی رندھاوا اور ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کا کہنا ہے کہ لسٹوں کی ری چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ ہر مستحق تک راشن پہنچانے کی تیاریاں مکمل ہیں۔ تقریباً 4,58,000 لاہور کا ڈیٹا ہے اور اگر پورے لاہور ڈویژن کو اٹھا لیں تو 10 لاکھ سے زیادہ ہمارے پاس بینیفیشریز کا ڈیٹا ہے۔ ڈی سیز آفیسز اس کو ویریفائی کر رہے ہیں اور اس میں لاہور کی حد تک اور لاہور ڈویژن کی حد تک ہم نے یہ بات کنوے کر دی ہے اور ہمیں چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز بھی یہ ہمیں مل چکی ہوئی ہیں کہ ہم نے یہ رمضان کا پورا پیکیج جو ہے وہ لوگوں کی دہلیز پہ لے کے جانا ہے۔ ریالہ صاحبہ کی طرف سے بڑی کلیئر انڈیکیشنز ہیں، جو ڈائریکشنز آئی ہیں گورننس ماڈل کے اوپر بھی، پرائس چیکنگ اس کے کنٹرول پہ، اینٹی ہورڈنگ ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی، اور ساتھ ساتھ رمضان کے علاوہ جو تھرو آؤٹ جو ورکنگ ہونی ہے اس کے اوپر بڑی کلیئر ڈائریکشنز آ چکی ہوئی ہیں اور اس کو ہم انشور کریں گے کہ فیلڈ فارمیشنز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے اپلیکیبل بھی کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر تجاوزات کو خود ساختہ ہٹوانے کے لیے 15 روز کی ڈیڈ لائن پر بھی ضلع انتظامیہ متحرک ہے۔ رمضان المبارک کے لیے خریداری بن گئی پریشانی۔ یوٹیلٹی سٹورز پر آٹے کا بحران، دالیں بھی نایاب ہو گئی۔ شہری سستا آٹا لینے کے لیے یوٹیلٹی سٹورز کے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ رمضان کی آمد سے قبل لاہوریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت بڑھ گئی، دالیں بھی غائب۔ ہفتے میں صرف 2 دن اشیاء کی سپلائی ہو رہی ہے۔ لوگ سستا آٹا لینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے دھکے کھانے پر مجبور۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آئے خریداروں نے بتایا کہ کئی روز سے چکر لگا رہے ہیں مگر آٹا پھر بھی نہیں ملا۔ آٹا آنے پر لمبی لائنوں میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ روز چکر لگا رہے ہیں، جب بھی آتے ہیں پتہ چلتا ہے جی آٹا ختم ہو گیا، آیا تھا تو مل نہیں رہا۔ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، ٹائمنگ کی کوئی نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک دفعہ ملتا ہے، چکر لگا کے نا، کبھی قسمت میں ہوتا تو مل جاتا، کبھی نہیں بھی ملتا۔ دوسری طرف یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ سٹورز پر رمضان سے قبل خریداری کے انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ جماعت اسلامی نے بجلی پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی لاہور کی قیادت آج شہر کے 4 مختلف مقامات پر احتجاج کرے گی۔ راہیل علی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے بڑھتی مہنگائی پر اتوار کے روز سے احتجاج شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ضیاء الدین انصاری کا کہنا تھا کہ نگران حکومت پیٹرول اور گیس کے مزید بم گرا گئی ہے۔ سوئی گیس کی قیمتوں میں ایک سال کے دوران 1150% اضافہ کر دیا گیا۔ موجودہ حکومت کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ سوئی گیس کی قیمتوں میں گزشتہ ایک سال میں 1150% اضافہ ہوا ہے۔ عوام کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جائے
ان کے صحافیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جائے، ان کا مینڈیٹ چوری کیا جائے، تو پھر عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں رہتا کہ وہ احتجاج کرے۔ پرسوں اتوار کے روز ہم لاہور شہر میں 4 مختلف مقامات پر بڑے مظاہرے کریں گے اور حکومت کو یہ باور کرائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی کے خلاف اتوار کو احتجاج کر رہے ہیں، عوام کو ریلیف ملنے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ راحیل علی، لاہور نیوز۔ لیگی رہنما ازما بخاری کہتی ہیں رمضان پیکیج ارکین اسمبلی کے ذریعے عوام کو فراہم کرنے کا پریشر تھا، تاہم وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ 64 لاکھ خاندانوں کو پہلی بار گھر کی دہلیز پر راشن پہنچایا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ نون لیگ پنجاب کی ترجمان ازما بخاری کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈور پھرنے، خاتون پر تیزاب گردی اور ملازمہ پر تشدد میں ملوث تمام ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ تمام ایک چیزوں کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی زیرو ٹالرنس ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ چیزیں رپورٹ ہوں، ڈور پھرنے کے واقعات تھے یا سرگودا کے اندر گھریلو ملازمہ کو جان سے مار دینے کا واقعہ ہے یا ایک خاتون کے اوپر جو ہے وہ تیزاب گردی کا واقعہ ہے، تمام کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ازما بخاری نے کہا کہ رمضان المبارک میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ایک نیا محکمہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ 64 لاکھ خاندانوں کو ملکی تاریخ میں پہلی بار گھر کی دہلیز پر رمضان پیکیج کے تحت راشن پہنچایا جائے گا۔ 64 لاکھ خاندان، 64 ملین جو فیملیز ہیں، اور اگر پاکستان کے ڈیٹا کے ساتھ دیکھا جائے تو 5 سے 6 لوگ پر فیملی ڈالے جائیں تو 3 کروڑ کے قریب یہ لوگ بنتے ہیں، جن کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کے گھروں کے اوپر رمضان پیکج کے جو پیکٹس ہیں وہ پہنچائے جائیں گے۔ ازما بخاری نے کہا کہ مریم نواز رسمی کارروائی برداشت نہیں کریں گی، وہ انڈر ٹریننگ نہیں بلکہ ٹرینڈ وزیر اعلیٰ ہیں۔ پنجاب کی کابینہ جلد بن جائے گی۔ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کا لاہور کے جی پی او چوک میں احتجاج، پولیس نے دونوں رہنماؤں سمیت متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ انتخابات میں مبینہ دھاندلی، پی ٹی آئی کی کال پر لاہور کے جی پی او چوک پر کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ، حافظ ذیشان، شہزاد فاروق اور شبیر گجر مختلف ریلیوں کی قیادت کرتے ہوئے احتجاج کے لیے پہنچے۔ اس موقع پر مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ پولیس اور کارکن آمنے سامنے آئے تو بات بگڑ گئی۔ پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور پی ٹی آئی رہنما شہزاد فاروق اور حافظ ذیشان سمیت 20 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ احتجاج کے موقع پر موجود سینئر قانوندان اظہر صدیق نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے تحت پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ اس ملک میں بنیادی حق ہیں ہر ایک کے۔ آج ایک پرامن مظاہرہ ہونا ہے اور آگے لوگوں نے احتجاج کرنا تھا۔ صرف کیا احتجاج ہے ان کا کہ ان کا فارم 45 جو ہے وہ دیا جائے، اس پہ رزلٹ اناؤنس کیا جائے۔ مجھے بتائیں اس میں کیا ایسی بات ہے؟ کیا یعنی کسی کو احتجاج نہیں کرنے دینا چاہیے؟ کیا آپ اس ملک میں مارشل لا برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس ملک میں آپ یہی حالات قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا اس بات کی اجازت دی جانی چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے صدر پاکستان اور چیف جسٹس سے معاملے کا نوٹس لینے اور گرفتار کارکن فوری رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے میرے بیٹے نے الیکشن لڑا۔ صاحبزادہ حامد رضا کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ غداری ہے، بانی تحریک انصاف کے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی مذمت کرتا ہوں۔ محمد یاسین کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی راجہ ریاض کا اپنی رہائش گاہ پی سی ایل آئی آر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا صاحبزادہ حامد رضا کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط بانی پی ٹی آئی کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں رہ گیا کہ سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹیں ملیں۔ بانی تحریک انصاف کے آئی ایم ایف کو لکھے خط کی مذمت کرتا ہوں۔ اس نے ایک الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ مجھے جو لیڈیز سیٹس ہیں، کیونکہ میں نے خود الیکشن نہیں لڑا، اس لیے مجھے کسی لیڈیز سیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب علی ظفر صاحب 3:04 بجے الیکشن کمیشن کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ حامد رضا صاحب لیٹر لکھ کے دے گئے ہیں 15 منٹ پہلے کہ مجھے کوئی لیڈیز نشست نہیں چاہیے، کیونکہ میں نے خود اس پارٹی کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑا، اس لیے مجھے لیڈیز نشست نہیں چاہیے اور میں کسی لیڈیز نشست کا
ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। जो PTI ने लेटर लिखा है IMF को, मैं शदीद अल्फाज में बतौर एक पाकिस्तानी उसकी मजम्मत करता हूँ। राजा रियाज का मजीद कहना था, पाकिस्तानी अवाम को महंगी बिजली और महंगाई का सामना है। जो हुकूमत रिलीफ नहीं देगी उसको मुश्किलात पेश रहेंगी। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अवाम ने नई हुकूमत बनने से पहले ही इसे मुस्तरद कर दिया है। IMF की डिडक्शन और नाकिस माशी पॉलिसियों ने मजदूर का जीना मुश्किल कर दिया है। हमजा खुर्शीद की ये रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान की मरकजी क़यादत ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि अवाम ने नई हुकूमत बनने से पहले ही उसे मुस्तरद कर दिया है। ये आजमाए हुए लोग हैं, इनकी माजी की हुकूमत के असरात मजदूर और गरीबों की जिंदगियों पर अब तक पड़ रहे हैं। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि इस वक्त मुल्क में 7 करोड़ मजदूर तबका है। IMF की डिक्टेशन और नाकिस मुआशी पॉलिसियों ने मजदूर का जीना मुश्किल कर दिया। सब ने मिलकर मज़दूरों ने 2024 के स्प्राड इलेक्शन को मुस्तरद किया। अब जो भी हुकूमत बनती जा रही है, 25 करोड़ अवाम ने बनने से पहले इसको मुस्तरद किया है। ये उन लोगों की हुकूमत है जो एक नहीं बार बार आजमाए गए हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, IMF के डिक्टेशन पर चलने की वजह से, बेइंतहा तबाहकुन महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से ये हड्डी भी अब टूट गई है। सिराजुल हक ने मुल्क भर के डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली रवामा सेनेट के 12 अरकान का इंतखाब करेगी। 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अकलीती नशिस्त पर सेनेट मेंबर्स को मुंतखब किया जाएगा। लियाकत अली की ये रिपोर्ट देखिए। सेनेट में नए अरकान के इंतखाब का मामला 8 मार्च 2024 को पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 11 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। सुबकदोश होने वालों में जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता 4 सेनेटर हैं। मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर आसिफ किरमानी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, राना महमूदुल हसन और खालिद शाहीन बट बतौर सेनेटर अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर होंगे, जिनमें डॉक्टर शहजाद वसीम और वलीद इकबाल शामिल हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर पंजाब से 2 खवातीन सेनेटर्स रिटायर होंगी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाली नून लीग की हिमायत याफ्ता नुज़त सादिक और तहरीक इंसाफ की सीमी एजदी रिटायर होंगी। टेक्नोक्रेट और उलमा की मखसूस नशिस्तों पर भी 2 सेनेटर्स पंजाब से रिटायर होंगे। इनमें मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता हाफिज अब्दुल करीम और इसहाक डार शामिल हैं। अकलियतों की मखसूस नशिस्त पर भी पंजाब से कामरान माइकल रिटायर हो रहे हैं। पंजाब से सेनेटर राना मकबूल अहमद सितंबर 2023 में वफात पा गए थे। पंजाब असम्बली की तहलील के बाइस राना मकबूल की जगह नए सेनेटर का इंतखाब भी नहीं हो सका था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का कैंसर के इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए खुसूसी हस्पताल कायम करने का ऐलान। आवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी दे दी। इजलास में आवाम को सेहत की सहूलतें उनकी दहलीज पर देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर से शुरू करने का फैसला किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे खुसूसी इजलास। आवाम को सेहत की सहूलतें उनकी दहलीज पर देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर से शुरू करने का फैसला। आवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की मंजूरी। इजलास में हेल्थ सिस्टम की तश्कील 9, महकमा सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर किया गया। माँ और बच्चे की सेहत के लिए मयारी इलाज से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि कोई अस्पताल ऐसा न हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिब्बी आलात मुयस्सर न हो। इजलास में देही और रूरल मराकिज़ सेहत और डिस्पेंसरियों की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि अर्बन एरिया और देहात में मुकर्ररा अय्याम पर मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का नौमौलूद बच्चों के लिए इनक्यूबेटर की कमी तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के हर शहरी के लिए इलाज की बेहतर सहूलतें यकीनी बनाना मेरा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत अली जान ने शोबा सेहत की अपग्रेडेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सेनेटर परवेज रशीद, रुकने असम्बली मरियम औरंगजेब समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम ने इजलास में शिरकत की।
शाहदरा के इलाके बेगम कोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, रिकॉर्ड याफ्ता डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हुए और पुलिस के मुताबिक नाके पर मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। मुलजिम इरफान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। गिरफ्तार जख्मी डाकू इरफान डकैती और चोरी की 30 के करीब वारदातों में मतलूब था। पुलिस का फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अमीर बलाश कत्ल केस की तफ्तीश तेजी से आगे बढ़ने लगी। मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में भी तब्दीली कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अमीर बालाश टीपू केस में बड़ी पेशरफ्त। इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2 मजीद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में हारून और अली असगर शामिल हैं। अब तक मजमूई तौर पर 6 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले से गिरफ्तार मुलजिमान में एहसन शाह, मलिक सुहेल, मुजम्मिल और अहमद शामिल हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक शूटर हारून और अली असगर इस कत्ल में मास्टर प्लानर थे। हमले के वक्त जाए वारदात पर 5 मुलजिमान मौजूद थे। इन 5 मुलजिमान में 2 शूटर थे जिनमें मुजफ्फर मौके पर ही मारा गया, जबकि हारून फरार था। प्लान के मुताबिक अमीर बालाश को कत्ल करने वाले शूटरों को भी मजीद 3 शूटरों ने कत्ल करना था। मुलजिम मुजफ्फर के मारे जाने के बाद दीगर तमाम शूटर वीगोडाले में फरार हो गए, जिसकी फुटेज भी सामने आ चुकी है। पुलिस ज़राए के मुताबिक अमीर बालाश को कत्ल करने के लिए असलहा और वीगो डाला तीफी बट और गोगी बट ने दिया था। बाकी सारी मनसूबाबंदी मुलजिम अली असगर ने की। दूसरी जानिब अमीर बालाश कत्ल केस में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी तब्दील। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मुस्तनसर अता बाजवा की जगह एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफीक को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल कर लिया गया। डीएसपी मोहम्मद अली बट की जगह डीएसपी मौज़म ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बन गए। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के 4 अफसरान अब इस केस की तफ्तीश करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन ने 2 माह से ज़ायद अरसे से जारी हड़ताल आरजी तौर पर ख़त्म कर दी है। पीर के रोज़ से मामूल के मुताबिक केसेस की समाअत होगी। ओहदेदारों ने चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, लाहौर बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत का कहना था, अफसोस की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इसका कोई खातिर खा नोटिस नहीं लिया। हम मखसूस मुद्दत के लिए ऐवान अदल की हद तक हड़ताल खत्म कर रहे हैं। आज हड़ताल का 73वां दिन था और हम बावजूद कोशिश के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अपनी बात शायद समझाने में नाकाम रहे हैं और वो अपनी बात पर सख्ती से कायम है। और हम बार एसोसिएशन भी हम इस बात पर बिल्कुल यकीन के साथ खड़े हुए हैं कि हम किसी सूरत भी सिविल कोर्ट्स की तकसीम लाहौर में नहीं होने देंगे। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बट ने कहा, लाहौर बार एसोसिएशन जो कहेगी लाहौर हाई कोर्ट बार उसके साथ खड़ी है। सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी का कहना था, मेट्रोपॉलिटन शहरों में अदालतें एक ही जगह पर होती हैं। जो अदालतें मॉडल टाउन शिफ्ट की गई हैं वहाँ कोई वकील पेश नहीं होगा। हमारे एक इस मुतालबे के अलावा मेन मुतालबा तो हमारा यही है कि ये मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जो है, जैसा कि सदर सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया कि वो जो मॉडल टाउन की कोर्ट्स हैं वो किसी तौर पे वायबल नहीं है। जो मुतनाज़ा अदालतें हैं 11 जो सिविल अदालतें मॉडल टाउन में शिफ्ट की गई हैं उनमें किसी तौर पे कोई वकील पेश नहीं होगा और किसी तौर पे उनमें काम नहीं होगा, और अगर उसमें कोई पेश होगा वकील तो मेरी पंजाब बार काउंसिल उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेगी। वकला तंजीमों ने इस अज़्म का इजहार किया। नए चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान हल्फ उठाने के बाद इस मसले का हल निकालेंगे। कैमरामैन शहबाज खान के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब के पहले मुस्तनद डेटाबेस हब और डेटाबेस अथॉरिटी के लिए तजवीज़ और सिफारिशात पर गौर किया गया। मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया। हसन रजा की ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। पंजाब के पहले मुस्तनद डेटाबेस हब और डेटाबेस अथॉरिटी के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गौर। डेटाबेस की तश्कील से मुआशी पॉलिसी साजी में मदद मिलेगी। मुस्तनद और जामे डेटा की मदद से सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में भी आसानी होगी। जामे और मुस्तनद डेटा हब से मुस्तहिक अवाम को रिलीफ मिलेगा।
इजलास में पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब की आबादी का मरबूत और मस्तनद डेटा मुरतब करने का हुक्म। डेटा बैंक में पंजाब के हर फर्द और ख़ानदान के बारे में मुआशी और समाजी मालूमात के इशारिये शामिल होंगे। हर बच्चे की पैदाइश पर डेटा खुद ब खुद अपडेट करने का तरीका वज़ा करने की हिदायत। पंजाब में बाहर से आकर बसने वालों के अदाद शुमार भी मुरतब करने का जायजा। पॉपुलेशन डेटा की तश्कील के लिए कलीलुल मुद्दती और तवीलुल मुद्दती कार पर गौर किया गया है। मरियम औरंगजेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप में MNA बिलाल कियानी, मुतल्लिका अफसरान और स्टेटिस्टिक्स माहिरीन शामिल होंगे। इजलास में साबिक सेनेटर परवेज रशीद, अरकान असम्बली मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, सानिया आशिक, डॉक्टर अमजद साकिब ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, सेक्रेटरीज, चेयरमैन PITB और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान कहते हैं कि अमेरिका का पाकिस्तानी तलबा को मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और एक्सचेंज प्रोग्राम के ज़रिए आला तालीम के मौक़े देना काबिल कदर है। और गवर्नर पंजाब से अमरीकी माहिर तालीम और किनेड कॉलेज के फैकल्टी मेंबर पर मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की है। स्पीकर प्रिंसिपल किनेड कॉलेज प्रोफेसर रुखसाना डेविड की क़यादत में मुलाकात की। वफ़द में वाइस प्रिंसिपल किनेड कॉलेज डॉक्टर गजाला यकूब, फैकल्टी मेंबर्स ज़ुबैदा ज़िया, माहा जमील और दीगर भी शामिल थे। और मुलाकात के दौरान पाकिस्तान US एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तालीम के शोबे में ताउन, तहकीक और इख्तरा को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया है। LDA में प्लॉट लेने के हकदार अपना हक लेने के लिए दरबदर ठोकरें खाने लगे हैं। LDA की तश्कील करदा एलोकेशन कमेटी का इजलास इल्तिवा का शिकार है। प्लॉट अलॉट करने के बजाय अथॉरिटी ने नए SOPs तश्कील दे दिए हैं। ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। हकदारों को प्लाटों की अलाटमेंट का मामला मुसलसल ताखीर का शिकार। LDA ने अराजी एक्वायर करने के एवज प्लॉट अलॉट करने की पॉलिसी तो दे दी, मगर इस पॉलिसी पर अमल दरामद का काम खटाई में पड़ चुका है। LDA में एलोकेशन कमेटी का इजलास ही कई माह से नहीं हो सका। प्लॉट अलॉट करने के लिए LDA में नई प्लॉट एलोकेशन कमेटी तश्कील दी गई, जो सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद होकर रह गई। LDA की स्कीमों में एग्जामिशन के हसूल के लिए दरखास्त कुनिंदगान रुल गए। जोहो टाउन सब्जाजार स्कीम, अलामा इकबाल टाउन में प्लॉटों के एलोकेशन इल्तवा का शिकार। गुज्जरपुरा चाइना स्कीम, गुलशन रावी के प्लॉटों की एलोकेशन भी नहीं हो सकी। शिफ्टिंग का बहाना बनाकर स्कीमों में एलोकेशन की फाइलों को रोका गया। दूसरी जानिब LDA ने प्लॉटों को अलॉट करने की बजाय नए SOPs बना दिए। प्लॉट बैंक के जरिए प्लॉट अलॉटमेंट का तरीकाकार ही बदल दिया गया। परफॉर्मा कटिंग के बगैर ही परफॉर्मा को दुरुस्त माना जाएगा। हाउसिंग डायरेक्टोरेट के केसेस को एग्जामिशन पॉलिसी के मुताबिक चेक किया जाएगा। गुज्जरपुरा स्कीम में रहायशी प्लॉटों की कमी का इंकशाफ हुआ। गुज्जरपुरा स्कीम के प्लॉट बैंक में मजीद रहायशी प्लॉट शामिल किए जाएंगे। DG LDA ने एग्जामिशन से मुतालिक मसाइल हल करने के लिए एडिशनल DG हाउसिंग को 7 रोज में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का शादमान, चुबुरची, गुलबर्ग, भाटी समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई, ड्रेनों की डिसिल्टिंग और दीगर ऑपरेशंस का जायज़ा लिया। और DC लाहौर आफिया हैदर, CO LWMC बाबर साहब दीन, MD वासा गुफरान अहमद भी कमिश्नर के हमरा थे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा है कि शहर में सफाई ऑपरेशन को सुबह स्कूल औकात से पहले मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर लाहौर ने आरसी डिम्पिंग साइट को शजरकारी के ज़रिए खूबसूरत बनाने की हिदायत की हैं और इन्होंने कहा है कि आरसी डिम्पिंग साइट की वजह से इर्द गिर्द के मकीनों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आरसी डिम्पिंग साइट को मुकम्मल कवर किया जाए। लाहौर से तजावुज़ात हटाने का मामला, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इंतज़ामिया को फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। कहती हैं तजावुज़ात का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। दूसरी जानिब से LDA टीमों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात मिस्मार और सरबा मोहर कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर को तजावुज़ात से पाक करने का मिशन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इन एक्शन। वज़ीर आला पंजाब ने दुकानों के सामने तजावुज़ात का नोटिस ले लिया। सामान हटाने के लिए इंतजामिया को 1 माह की मोहलत दे दी। शहरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ से शिकायत की कि तजावुज़ात की वजह से आए रोज हादसात होते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की मुतल्लिका हुकाम को ट्रैफिक रवानी और शहरियों की आसानी यकीनी बनाने की हदायत। दूसरी जानब LDA टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। खीरा डिस्ट्रीब्यूटेड रोड कंट्रोल्ड एरिया में गैर कानूनी कमर्शियल हॉल गिरा दिया गया। पाइन एवेन्यू पर निजी सोसाइटी से का सर्विस स्टेशन और वर्कशॉप मिस्मार। नशीमन इकबाल हाउसिंग स्कीम फेज 2 में गैर कानूनी दुकानें और डबल स्टोरी इमारत गिरा दी। डिफेंस रोड पर गैर कानूनी दुकानें मिस्मार कर दी गईं। जोहो टाउन E और F ब्लॉक में गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात मिस्मार। फिरोजपुर रोड और कच्चा जे रोड पर 33 गैर कानूनी तामीरात गिराई गईं। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की जेर निगरानी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 7 ने किया।
लाहौर में तरक्याती मंसूबों पर काम तेज़ी से जारी। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे को अप्रैल के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि रेलवे क्रॉसिंग फ्लाई ओवर पर गर्डर्स रखने का काम जल्द शुरू होगा। CEO CBD पंजाब इमरान अमीर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल ने इजलास में बताया है कि रेलवे क्रॉसिंग फ्लाई ओवर 2 की MSC वॉल सब ग्रेड लेवल तक मुकम्मल हो गई है। फ्लाई ओवर 1 की MCL वॉल का 70% काम मुकम्मल कर लिया गया है। बहुत जल्द फ्लाई ओवर्स पर गर्डर्स रखने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वॉल्टन रोड तक अप्रोच रोड पर भी सब बेस का काम मुकम्मल कर लिया गया है। पंजाब भर में मुख्तलिफ शाहराहों की मरम्मत और बहाली सुस्त रवि का शिकार है। हुकूमत बदलते ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी सुस्त पड़ गई हैं। तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर सेक्टरी बल्दियात ने मुकामी हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत सूबे भर की सड़कों की मुरम्मत में सुस्ती। 2 डेडलाइंस गुजरने के बावजूद पंजाब भर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सड़कों की मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल ना कर सकी। गुज़िश्ता हुकूमत ने मुरम्मत के हवाले से पहले 31 दिसंबर और फिर 31 जनवरी की डेडलाइंस दी थी। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की 95 शाहराहों की मुरम्मत और बहाली का काम 95% मुकम्मल। जंग में 7 शाहराहों की मुरम्मत का काम सिर्फ 39% मुकम्मल किया जा सका। फैसलाबाद में 80 करोड़ रुपए की लागत से शाहराहों की सिर्फ 70% मुरम्मत मुकम्मल हुई। विहाड़ी में 53 करोड़ रुपए से 11 शाहराहों की मुरम्मत होनी है, लेकिन 20% काम भी मुकम्मल ना हो सका। सरगोदा की 7 शाहराहों की सिर्फ 40% मुरम्मत मुकम्मल की जा सकी। मंडी बहाउद्दीन की 11 शाहराहों पर मुरम्मत और बहाली 55% ही मुकम्मल हो सकी। रावलपिंडी में 1 अरब 95 करोड़ रुपए लागत से 35 सड़कों पर सिर्फ 57% काम मुकम्मल किया जा सका। शेखपुरा में भी शाहराहों की बहाली का 50% काम बाकी। गुजरावाला में 61 करोड़ रुपए से शाहराहों की मुरम्मत का 75% काम मुकम्मल हो गया। जेहलम में 12 शाहराहों की मुरम्मत सिर्फ 18% मुकम्मल हुई। तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर सेक्रेटरी बल्दियात ने मकामी हुकूमतों से रिपोर्ट तलब कर ली। शहर की 5 मरकजी शाहराहों पर 55 खुले मैनहोल्स शहरियों के लिए जानलेवा साबित हुए हैं और वज़ीर आला पंजाब के खुले मैनहोल्स पर फौरी ढक्कन लगाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में खुले मैनहोल्स को कवर करने के लिए कमिश्नर लाहौर को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। शहर के खुले मैनहोल से मुतल्लिक मज़ीद इंकशाफात लाहौर न्यूज़ सामने ले आया है। वासा और MCL के बाद PTCL के मैनहोल्स खुले पाए गए हैं, जबकि PTCL इंतज़ामिया ने तारे बिछाने के बाद मैनहोल्स कवर ही ना किए और शहर के 5 मरकजी शाहराहों पर 55 मैनहोल्स खुले पाए गए हैं। गुलबर्ग और मोलिका इलाकों में 2 माह कबल से 200 से ज़ायद मैनहोल्स को कवर किया गया था। मॉनिटरिंग न होने की वजह से मैनहोल्स कवर फिर से गायब हो गए हैं। लाहौरियों पर कूड़ा टैरिफ लगाने की सिफारिशात फी घर दुकान से कूड़ा टैक्स वसूल की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। LWMC पंजाब हुकूमत को तजवीज़ पेश करेगी। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट देखिए। पर एक और टैक्स लगाने की तैयारी। फी घर और दुकान से कूड़ा टैक्स वसूली की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। LWMC पंजाब हुकूमत को तजवीज़ पेश करेगी। कूड़ा उठाने के लिए फी घर माहाना 250 रुपए से 2000 रुपए तक टैरिफ आयद करने की सिफारिश की जाएगी। कमर्शियल मकामात से कूड़ा उठाने के लिए 500 से 10,000 रुपए तक माहाना टैरिफ आयद करने की सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सिफारिशात पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक लाहौर में कूड़ा टैरिफ आयद करने से 12 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा, जिससे हुकूमती खजाने पर LWMC के अखराजात का बोझ कम होगा। LWMC हुकाम के मुताबिक सालाना अखराजात 20 अरब रुपए तक पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शहर में सफाई के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने वासा की डेनों की डिसिल्टिंग का शेड्यूल मांग लिया है। लाहौर को साफ और शिफाफ बनाने का मिशन है और LOS और गुलबर्ग ड्रेन में भारी मशीनरी के साथ सफाई ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। 3 दिन में लाहौर की तमाम ड्रेनों से सेल्ट और कूड़ा क्रिकेट निकाल दिया जाएगा। सीवरेज ओवरफ्लो होने वाले इलाकों में मुतल्लिका सब इंजीनियर को विजिट और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। आवाम के लिए अच्छी खबर है, एक बार फिर अवामी मुकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऐलान के बाद मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। अब PTCL की बजाय पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आतिफ परवेज़ की ये रिपोर्ट देखिए। पब्लिक मुकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऐलान के बाद मंसूबे पर काम शुरू हो गया।
पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को मंसूबे की जिम्मेदारी सौंप दी गई। PITB ज़राए का कहना है कि पुराने हॉटस्पॉट एरियाज को बहाल किया जाएगा। एक बार फिर बस स्टॉप्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अस्पतालों और रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत होगी। मजीद हॉटस्पॉट एरियाज को भी मंसूबे में शामिल किया जा सकता है। 2013 में भी नून लीग की हुकूमत ने लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुफ्त वाईफाई की सहूलत दी। PTI दौरे हुकूमत में मुफ्त वाईफाई सर्विस बंद कर दी गई। PTI दौर में मुफ्त वाईफाई की फराहमी की जिम्मेदारी PTCL को दी गई थी। अब की बार PITB मुफ्त वाईफाई की सर्विस फराहम करेगा। लेस्को की जानिब से हर माह सारिफिन पर बोझ डालने का सिलसिला जारी। कोई नोटिस नहीं, कोई वार्निंग नहीं। बिल दो वरना कनेक्शन मुनक़ता। करंट बिल अदा न करने पर भी बगैर नोटिस कनेक्शन काटने का सिलसिला शुरू। डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ज़राई बिलों के एक साथ का रिलीफ भी ख़त्म कर दिया गया। फहद अमीन की ये रिपोर्ट देखिए। लेस्को अफसरान ने रिकवरी टारगेट पूरा करने के लिए नेपरा कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। बिलिंग के हवाले से भी सार्फिन के हकूक सलब कर लिए गए। नेपरा की जानिब से दिया जाने वाला रिलीफ खत्म कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक एक माह का बिल अदा न करने पर भी बिजली सार्फिन के कनेक्शन बगैर नोटिस दिए मुनक़ता होने लगे। घरेलू, इंडस्ट्रियल, ज़राई और कमर्शियल सार्फिन के लिए एक साथ का रिलीफ भी खत्म। लेस्को इंतजामिया ने करंट बिलों की एक साथ बंद कर दी। नेपरा कवानीन के मुताबिक सारिफ अगर एक माह का बिल अदा न करे तो उसे अगले माह का नोटिस जारी किया जाता है। ज़राए के मुताबिक नोटिस के बाद नादहिंदा सारिफ का कनेक्शन मुनक़ता किया जाता है। रवा माह एक माह के बिल की आखिरी तारीख गुजरने पर बगैर नोटिस के सैकड़ों कनेक्शन मुनक़ता किए गए। लेस्को अमले ने 50,000 से ज्यादा बिल वाले सार्फिन से जबरदस्ती बिल जमा करवाए। महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग होने के बायस सार्फिन की बिल अदा करने की सकत न रही। सार्फिन का कहना है कि लेस्को अफसरान और अमला इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रहा है। जो सारिफ किसी मामले पर मुज़ाहमत करता है उसका कनेक्शन मुनक़ता करके बिजली चोरी या कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। सिविल सर्विस एकेडमी वफ्द का पंजाब फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। DG फूड अथॉरिटी आसिम जवेद ने वफ्द को बच्चों की अच्छी सेहत और बेहतर नशोनुमा के लिए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। मुलाकात में पंजाब फूड अथॉरिटी फूड लैब्स के काम और लाइसेंसिंग के तरीक़ाकार पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। DG फूड अथॉरिटी ने वफ्द में शामिल अफसरान के सवालात के तफसीली जवाबात भी दिए। वफ्द में शामिल अफसरान ने बच्चों की एड सेफ गुड्स कैंपेन और पंजाब फूड अथॉरिटी के लाए अमल की तारीफ की। नई पंजाब हुकूमत को लाहौर में इको फ्रेंडली बसें चलाने का भी चैलेंज मिल गया। लाहौर में इको फ्रेंडली बसें चलाने के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल शुरू हो गया है। निगरान पंजाब हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने की मंजूरी दे रखी है। ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर को इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की फ्राहमी नौमुंतखब पंजाब हुकूमत को चैलेंज मिल गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब को इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने की मंजूरी दी। 6 कंपनियों ने प्री क्वालिफिकेशन के लिए कागजात जमा करवा दिए। वर्ल्ड बैंक के पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक बसें दरामद करने का प्लान बनाया गया। पहले मरहले में 27 बसें 12 साल गारंटी के साथ दरामद की जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों की मुरम्मत के लिए टूल किट्स भी कंपनी से मंगवाई जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद मजीद इलेक्ट्रिक बसें दरामद की जाएंगी। एक इलेक्ट्रिक बस में 44 से 49 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश होगी। पायलट प्रोजेक्ट से रोजाना औसतन 6000 मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। माजी में पंजाब में सियासी सूरत हाल के सबब आलमी फर्म्स ने इलेक्ट्रिक बस मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार न किया था। मुआशरे में ख़वातीन का मुकाम और एहतराम। इस सिलसिले में अलहमरा में सखिया के उन्वान से 2 रोज़ा फेस्टिवल सज गया। रंगारंग फेस्टिवल में ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असम्बली सारा अहमद बतौर ख़ास शरीक हुई। सामिया सईद की ये रिपोर्ट देखिए। ख़वातीन की अज़मतों को सलाम। अलहमरा लाहौर और ब्रिटिश काउंसिल के इश्तराक से विमेन ऑफ दी वर्ल्ड फेस्टिवल को सखियां का उन्वान दिया गया है। फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस का इनेकाद। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और रुकने पंजाब असम्बली सारा अहमद की खसूसी शिरकत। उनका कहना था कि हमें ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस सिलसिले में अपनी खदमात पेश कर रहा है। So our job is really difficult and challenging also because we are supposed to bring them back to life. We have to remove that trauma from their minds and involve them in such activities so they could move on in life. So this is the work that we are doing, and I'm hopeful that I could do more for these girls, for children, to empower them towards women empowerment, of course.
چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی بچیوں نے بھی سکھیاں فیسٹیول میں اپنا سٹال لگایا، جنہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ یہاں آنا ہمارا کافی اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے ابھی تک تو اچھا جا رہا ہے، ہم کافی یہاں پہ آ کے انجوائے بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سیل بھی کر کے جائیں گے اب یہاں پہ۔ ہم نے صبح سے یہ چیزیں پیک کی ہوئی ہیں اور ہم نے خود بیک کی ہیں اور آج ہم یہ سٹال کرنے آئے ہیں۔ سکھیاں کے عنوان سے ویمن فیسٹیول اتوار کو بھی جاری رہے گا۔ موسم بہار کیا شروع ہوا کہ لاہور میں ادبی محافل نے بھی جیسے موسم کا لطف دوبالا کرنے کی ٹھان لی ہے۔ فیض میلے اور لاہور لٹریری فیسٹیول کے بعد ویمن آف دی ورلڈ فیسٹیول نے بھی رنگ جمانا شروع کر دیا ہے۔ 2 روزہ فیسٹیول میں کیا کچھ چل رہا ہے بتا رہے ہیں سہیل کیسر اپنی اس رپورٹ میں۔ لفظ ہم جولیوں کو پنجابی میں ادا کرنا مقصود ہو تو بہت ہی خوبصورت لفظ سکھیاں استعمال ہوتا ہے۔ الحمرا لاہور اور برٹش کونسل کے اشتراک سے شروع ہونے والے ویمن فیسٹیول کو بھی سکھیاں کا عنوان دیا گیا ہے۔ فیسٹیول کا مقصد خواتین کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے کردار اور سماج کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کی خدمات کو روایتی انداز میں منانا ہے۔ پنجابی کامیڈی، اجتماعی کوششوں کی افادیت، پارٹی میک اپ، سیلف ڈیفینس اور دیگر موضوعات پر سیشنز کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کو شروع ہونے والے فیسٹیول کے دونوں روز مختلف موضوعات پر مجموعی طور پر 60 کے قریب سیشنز منعقد ہوں گے۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور ایسا عورتوں کے لیے ہونا چاہیے، ناٹ ایوری منتھ لیکن آفٹر ایوری 6 منتھ اس طرح کے فیسٹیول ہونے چاہیے۔ ایسے فیسٹیولز ہونے چاہیے عورتوں کے لیے۔ سیڈلی وی ڈونٹ سی دیز ٹائپ آف تھنگس فار ویمن یہاں پہ، تو اٹس ویری ریفریشنگ ٹو سی کہ وی آر ریزنگ آور وائس اباؤٹ دیز تھنگس۔ بہت ضروری ہے کہ عورتوں کے پاس سیف اسپیس ہو کہ وہ پبلک پلیسز میں آئیں، یہاں پہ اپنے حقوق جانیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں اور مطلب ایک کلیکٹیو یونٹی ہو۔ کافی موٹیویٹنگ تھا یہ دیکھنا کہ بہت سارے لوگ مدد کر رہے ہیں، لوگوں کی ایمپتھی ہے لوگوں میں اور وہ ملک کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے کافی موٹیویٹنگ تھا وہ۔ فیسٹیول کو ڈیجیٹل دنیا میں اپنی قدروں سے جڑے رہنے کی کوشش بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں اپنی نوعیت کے ہونے والے اس منفرد فیسٹیول کو نام بھی بہت منفرد سا دیا گیا ہے، سکھیاں، یعنی سہیلیاں، دوست۔ گویا یہاں آ کر آپ اپنی سکھیوں سے بھی ملاقات کریں اور مختلف سیشنز اٹینڈ کر کے اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں۔ کیمرامین بلال احمد اور ساتھی رپورٹر سامعہ سعید کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ 6 سال تک عدم توجہی کا شکار میٹرو بس سروس ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی ترجیح بن گئی۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے میٹرو بس کے بند برقی زینوں کی مرمت کے لیے کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے بھی قبلہ درست کر لیا۔ 6 سال تک عدم توجہی کا شکار میٹرو بس سروس میس ٹرانزٹ اتھارٹی کی ترجیح بن گئی۔ میٹرو بس کے بند برقی زینوں کی مرمت کے لیے کمپنی کی خدمات لینے کا فیصلہ۔ ایکسیلیٹر ٹھیک کرانے کے لیے مارچ 2024 میں کمپنی کی ری کوالیفیکیشن مکمل کی جائے گی۔ موجودہ صورتحال میں کینچی میٹرو بس اسٹیشن پر برقی زینے بند ہیں۔ نیازی چوک اور راوی روڈ اسٹیشن کے برقی زینے بھی فعال نہیں۔ بزرگ شہری میٹرو بس پر سفر کرنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ میٹرو اسٹیشن انتظامیہ نے رسیاں باندھ کر ایلیویٹر کو جانے والا راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ میٹرو بس اسٹیشن پر نصب ٹوکن مشینیں بھی خراب ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے انٹری بیریئر بھی بند پڑے ہیں۔ اس سے قبل میٹرو بس ایم یو کالج اسٹیشن پر چوری کی واردات ہوئی۔ میٹرو بس کے برقی زینوں سے پلیٹیں چوری ہونے کے متعدد واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ جی ایم آپریشنز میس ٹرانزٹ اتھارٹی عزیر شاہ کا کہنا ہے کہ میٹرو بس اسٹیشن پر خراب مشینری کی مرمت کا پلان تیار ہے۔ فنڈز کے اجرا کے بعد مرمت اور بحالی کا کام کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ فی الوقت اتنا ہی۔